ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام رانیہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میرا رشتہ میرے چچا کے گھر ابا نے کر دیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹی سی تھی۔ پہلے ہمارے چچا کی فیملی ہمارے ساتھ رہتی تھی، پھر وہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ آج کل گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ابا اب جلد از جلد میری شادی کر دینا چاہتے تھے۔ میری کبھی اپنے منگیتر سے بات نہیں ہوئی تھی اتنی زیادہ، جس کی وجہ سے مجھے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، نہ مجھے کبھی موقع ملا تھا اس سے باتیں کرنے کا۔ لیکن آج یوں ہی میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس کے نمبر سے مجھے کال آئی۔ میں پہلے تھوڑا حیران ہوئی، میں نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، تو آج بھی میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آخر میں نے تنگ آ کر اس کی کال پک کی۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیسی ہو؟ اس کی بات سن کے میں نے حسب ضرورت جواب دیا، ٹھیک ہوں، مگر وہ تو شاید مجھ سے باتیں کرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ویسے بھی پہلے کبھی ہماری ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ایک بار شادی سے پہلے مل لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ سے نہیں ملنا۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہو جائے گا ملنے سے؟ ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کی بات سن کے کہا کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں۔ میں نے غصے میں کہا، میں نے ایسے کب کہا کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں؟ بس میں نے سیدھی بات کی ہے کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا۔ بات کو آپ بڑھا رہے ہیں۔ میں بات ہی کر رہی تھی کہ اس نے کال کٹ کر دی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ اس نے کال کٹ کی، ویسے بھی مجھے ضدی لوگوں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج میری مہندی کا دن تھا۔ ساری لڑکیوں کی طرح میں بھی اداس تھی۔ گھر جو چھوڑ کر جانا تھا، لیکن اماں نے مجھے کہا وہ بہت اچھے لوگ ہیں، پریشان نہیں ہونا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں کی باتوں سے مجھے حوصلہ مل گیا، اب میں اتنی پریشان بھی نہیں تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد میں کمرے میں آئی تو پیچھے میری بہن بھی آ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے نہ جانے کیوں پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ وہ گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ میرے جانے کی وجہ سے تو وہ بالکل بھی پریشان نہیں، کیونکہ ہم دونوں بہنوں میں اتنا پیار نہیں تھا جو وہ میرے جانے کی وجہ سے پریشان ہوتی۔ لیکن کوئی بات تو تھی۔ میں نے اس سے کہا، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اگر ہوئی بھی تو آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ آپ کا تو اس گھر میں آخری دن ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہو گیا تھا وہ مجھے یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ اب میرا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جتنا گھر یہ تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی رہے گا، آئی سمجھ؟ اور آج کے بعد مجھے یہ نہ کہنا کہ اس گھر میں میرا آخری دن ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی آ گیا تھا۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور خود کو دیکھنے لگ گئی۔ ابھی میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا پھر سے موبائل بجنے لگ گیا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے ہونے والے شوہر کی کال آ رہی تھی، مگر میں نے موبائل رکھ دیا۔ میں اس کی کال پک نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ آج میری بارات کا دن تھا، میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے جیسا اس گھر کو دیکھا تھا یہ ویسا بالکل نہیں تھا، سب بہت مختلف تھا۔ میں نے تو ویسا ہی سمجھا ہوا تھا، مگر اب بہت پیارا بنا ہوا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں کمرے کو ارد گرد دیکھ رہی تھی، اتنے میں میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بیٹھا رہا، مگر اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ آخر تنگ آ کر میں نے ہی اس سے کہا، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں کریں گے کیا؟ اس نے آبرو اچکا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اچھا تمہیں بھی بات کرنی ہوتی ہے؟ اس کی طرف میں نے حیرت سے دیکھا، کتنی عجیب وہ بات کر رہا تھا، بھلا میں کوئی گونگی تھی جو بات نہ کرتی؟ وہ سنجیدگی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت سے کمرے کو دیکھنے لگ گئی اور اس کے بارے میں سوچنے لگ گئی، اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ ایسے کیوں وہ چلا گیا تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر سو گئی۔ اگر اسے بات نہیں کرنی تھی مجھ سے تو میں بھی کیوں اس کا انتظار کرتی؟ صبح کے قریب کسی کی آواز گونجی، کسی نے میرا نام پکارا تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے کام والی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ میں ارد گرد دیکھنے لگ گئی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر ارد گرد دیکھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میرے سونے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تھا کہ نہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، صرف اس وجہ سے جو میں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ عجیب آدمی تھا، جب میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، کال نہیں کرنا چاہتی تھی، تو کیا زبردستی تھی جو اس نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ؟ میں تو عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں فریش ہوئی تو نوکرانی مجھے ناشتہ دے کر گئی۔ اس کے بعد میرے ولیمے کے فنکشن پر اس سے ملاقات ہوئی، تب بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد تو ویسے ہی وہ 2 دن گھر سے غائب رہا۔
इतने दिनों से मैं फारिग रह रहकर बोर हो गई थी। आज मैं किचन में आ गई। मेरी सास मुझे कहने लगी, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने उन्हें कहा कि आपके साथ कोई काम करवा देती हूँ, मगर वो मुझे कहने लगी, नहीं तुम रहने दो। मैंने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अब मैं फ्री रहकर क्या करूँगी? वो मुझे कहने लगी, तुम नई नवेली दुल्हन हो, भला मैं काम करवाती अच्छी लगूंगी? उन्होंने ये कहकर मुझे किचन से बाहर भेज दिया। मैं किचन से बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए यही सोचने लगी कि घर में सभी अच्छे हैं सवाए उनके बेटे के। एक वही मुझे मुंह नहीं लगा था, बाकी सबका रवैया अच्छा था। मेरी सास किचन से बाहर आई तो सामने मेरा देवर खड़ा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा कि आपको अपने शोहर का कुछ पता भी है कि कहाँ पर है? मुझे तो लग रहा है किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होगा। इसका ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। मैं अपने देवर को अच्छी तरह से जानती थी। वो मजाक कर रहा था, क्योंकि उसकी आदत थी ऐसे ही मजाक करने की। हर वक्त मजाक में लगा रहता था। मैंने कभी उसकी बातों को महसूस नहीं किया था, मगर अब उसकी बेइज्जती हो रही थी तो वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर मुझे देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आने लगी, मगर मैंने महसूस किया था कि मेरी सास उसे अच्छे खासे नकम्मा और फजूल होने के ताने दे रही थी। इसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो वहाँ से चला गया। उसे जाता हुआ देखने लगी। फिर मैं अपनी सास के पास आई और उन्हें कहा कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आपने देखा नहीं कि उसका मूड कितना ऑफ हो गया था? उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप उससे ऐसा कह रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं, तुम इस फजूल नकम्मे को नहीं जानती, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छे फ़कीर होते हैं, कम अज़ कम मांग तो लेते हैं। मुझे हैरत हो रही थी वो क्यों ऐसे उसको बोल रही थी। वो उनका बेटा था और अपने बेटे को ऐसा कह रही थी। अब भला मैं उनको क्या कह सकती थी? उन्होंने वैसे भी मेरी तो कोई बात सुननी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने देवर पर तरस आ रहा था। मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। अपने देवर का मुझे तरस आ रहा था। वहीं पर मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आया। भला इतना अकड़ा हुआ कोई इंसान कैसे हो सकता था? रात के वक्त मेरा शौहर आया। मैंने उससे कहा, ठीक से बात क्यों नहीं करते मेरे साथ? क्या मसला है? वो मुझे कहने लगा, मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर रहा करो। मुझे मालूम है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे बता देती, मैं खुद ही इनकार कर देता। मैंने हैरत से उसको देखकर कहा, पागल हो गए हैं? मैंने आज तक ऐसी बात की है क्या कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, या फिर किसी किस्म की कोई बात भला मैंने की हो? वो मुझे कहने लगा, तुमने खुद तो ऐसी कोई बात नहीं की, मगर मुझे शादी से पहले ही तुम्हारे रवैये से पता चल गया था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वो मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं देता था और ख़ुद ही बातें शुरू हो जाती थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अब मैं इसको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इस शादी के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं थी। न जाने उसको ऐसे क्यों लग रहा था। आज मैं अपने मैके आई हुई थी। मेरी बहन का रवैया आज मेरे साथ बहुत अच्छा था। पहले तो वो हमेशा ही मेरे साथ झगड़ा करती रहती थी। इस बार मैंने हंसते हुए पूछा, बड़ी बात है, इस बार बड़ी अच्छी बन रही हो। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, बन नहीं रही, मैं हूँ ही बहुत अच्छी। इसकी बात सुन के मैंने कहा, अच्छा चलो, अब मुझे तुम्हारी अच्छाई नज़र आ गई। लेकिन मुझे पता था इससे मेरे साथ कोई तो मतलब है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ इतनी अच्छी बनी हुई थी, वरना तो वो इतनी अच्छी कभी नहीं थी। मैंने अम्मा से पूछा कि आजकल आपकी बेटी बड़ी अच्छी हो गई है। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अचानक से इससे क्या हो गया है। पहले तो वो मेरे साथ भी झगड़ा करती थी, मगर अब मुझसे भी ठीक से बात करती है। मैंने अम्मा को कहा, देख लेना, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अम्मा मुझे कहने लगी, तुम बस वैसे ही इस पर शक कर रही हो, इससे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हो गया है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इस पर शक नहीं कर रही। मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई। इतने में मुझे मेरे शौहर की कॉल आ गई और वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने थोड़ी हैरत से कहा, अभी लेने आ रहे हो? वो मुझे गुस्से में कहने लगा, तो और वहाँ पर कितना रहना है? मैंने कॉल कट कर दी। आज तो वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। मैं कमरे में आई और अपनी चीज़ें इकट्ठी की। इतने में वो मुझे लेने आ गया। मैंने देखा उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ ठीक था, मगर मेरे साथ न जाने क्या था। दिन ब दिन मेरे साथ बुरा ही होता जा रहा था। घर आते तक रात हो गई थी। मैं कमरे में आ गई, न जाने वो कहाँ चला गया। मैंने तो उससे कुछ पूछा भी नहीं था, ना ही उसने मुझे बताने की कुछ जहमत की। मेरी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। खटपट की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरा शौहर अलमारी के पास खड़ा कुछ देख रहा था। मैंने उसे पुकारा तो उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल एक दराज में रखी और उसको बंद कर दिया। मैंने हैरत से पूछा, क्या देख रहे थे आप इतनी रात को? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा, जैसे उसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही बाकी ना हो। मैंने कहा, आप कब आए हैं? वो कहने लगा, बस अभी। उसने बस इतनी सी बात की। मैं उठकर उसके पास आई और कहा, सब ठीक है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, मगर वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बैठ जाएं आराम से, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे।
मैंने उसे बेड पर बिठाया। मुझे हैरत हो रही थी, अब उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था। मैंने कहा, क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। वो मुझे कहने लगा, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, मगर पता नहीं मेरे सारे ख्वाबों पर कैसे रेजा रेजा हो गए हैं। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। वो मुझे कहने लगा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके ऐसे अजीब से इजहार पर मुझे हैरत हो रही थी। मुझे तो आज तक उसके रवैये से ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जैसे आज मुझे बोल रहा था। वो मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ कभी ऐसा रवैया नहीं रखा तुम्हारे साथ कि तुम्हें शक हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जानती हो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? इसकी बड़ी वजह यह है कि मुझे डर लगता है कहीं तुम भी मुझसे मोहब्बत न कर बैठो। इसकी अजीबोगरीब बातों पर मैं हैरान थी। अजीब शख्स था, मुझसे मोहब्बत भी करता था और ये भी डरता था कि मुझे कहीं उससे मोहब्बत ना हो जाए। अजीब बात थी ये भी। मैंने कहा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरा भी हक है कि आपसे मोहब्बत करूं, और वैसे भी मियाँ बीवी में होनी चाहिए मोहब्बत। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, पर हम में नहीं होनी चाहिए। वो मुझे ये कहकर चला गया। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि मुझे क्या कहना चाहता था। इसकी अजीब बातें मुझे परेशान कर रही थीं। अगले दिन मैंने किसी से कोई बात न की। मैं परेशान सी लाउंज में बैठी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई, जो कि परेशान लग रही थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं? वो मुझे कहने लगी, मैं अपने बेटे की शादी करना चाह रही हूँ, मगर इस कदर नकम्मा, फजूल और आवारा है ना मेरा बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके लिए लड़की कहाँ से लाऊं। जिसको देखो वही मुझे कहता है तुम्हारा बेटा आवारा और फजूल किस्म का है। ऐसे में तो उससे कोई अपनी बेटी का बाल भी ना दे। मैंने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा अच्छा सा रिश्ता। वो मुझे कहने लगी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, इससे तो पढ़ाकर भी ज़ाया ही किया, फजूल पैसे इस पर खर्च किए, किसी न काम का अनपढ़ जाहिल लगता है। मैंने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा ना बोला करें, इसको वो आपका बेटा है, अगर आप ही ऐसा कहेंगी तो वो और गुस्सा करेगा। मेरी सास को जब देखो वो अपने बेटे की बुराइयां करती रहती थी। जो भी कोई मोहल्ले से आती वो भी ऐसे ही मेरी सास के साथ लग पड़ती थी कि तुम्हारा छोटा बेटा तो किसी काम का नहीं। अम्मा भी इनकी हाँ में हाँ मिला रही होती थी और कह रही होती थी कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं। अगर मेरी अपनी सास ऐसे कहती थी तो लोगों ने तो इनके बेटे के बारे में बातें करनी ही थी। आज मेरा शौहर घर पर नहीं आया था। मेरी सास बार बार मुझसे पूछ रही थी कि वो घर क्यों नहीं आया, तुम्हारे साथ इसकी कोई बात हुई है क्या? अब भला मैं अपनी सास को क्या बताती, मुझसे तो वो ठीक से बात भी नहीं करता था। भला उसने खाक मुझे कुछ बताना था कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। इसका नंबर भी बन जा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर हो गया था। मैं अपने देवर के कमरे में गई, जाकर दस्तक दी। वो लैपटॉप में लगा हुआ था, न जाने क्या कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरा शौहर अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ है, कॉल भी नहीं कर रहा। वो मुझे देखकर कहने लगा, परेशान क्यों हो रही हैं, आ जाएंगे, पहले भी कभी कभी ऐसे करते हैं। मैंने कहा, पहले कहाँ जाते हैं पता कर दो ना, शायद वहीं पर हो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो मुझे कहने लगा, परेशान ना हो, आ जाएंगे। उसकी बात सुन के मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अलमारी खोलकर देखने लगी। न जाने इस रात वो क्या अलमारी में देख रहा था जिसकी वजह से वो मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहा था। पूरी रात मेरी यूं ही जागते गुजर गई, मगर वो ना आया। मैं बस अब परेशान ही हो सकती थी, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही थी। सुबह हो गई, मेरी सास ने मुझसे फिर ना पूछा अपने बेटे के बारे में। अब वो भी परेशान नहीं थी, घर में और कोई परेशान नहीं था, मैं ही थी बस। अब तो मेरी रोने वाली हालत हो गई थी। पूरा दिन भी गुजर गया। रात को वो आया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं गुस्से में उस पर फट पड़ी और कहा, कहाँ थे, ज़रा भी एहसास है मेरा, मैं कितनी परेशान थी। वो मुझे कहने लगा, ना हुआ करो मेरे लिए परेशान, शायद मैं किसी दिन घर ही ना आऊँ या फिर मेरी मैयत आए। उसकी बात सुनकर न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। फिर मेरे अपने हाथ भी कांपने लगे। वो मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, अच्छा मोहब्बत हो गई मुझसे, जो बात बर्दाश्त नहीं होती हकीकत बताई है। इसकी बात सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में मसल दिया हो। मैंने कहा, प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करो, मुझ पर कुछ रहम कर लें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरे आंसू निकल आए। वो मुझे कहने लगा, अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। उस दिन के बाद वो थोड़ा अजीब सा हो गया था, मगर उसका रवैया मेरे साथ ठीक था, मुझसे अच्छे से बात करता था। अब वो भी मुझे कहता था, जल्दी से मेरे भाई की शादी करो, लेकिन सब जानते थे वो कैसा है। रात के वक्त मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरा देवर अगरबत्तियाँ जला रहा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, ये आधी रात को क्या कर रहा था। मैंने उसे पूछना चाहा, लेकिन फिर मैं उसकी तरफ देखने लगी। वो न जाने क्यों ऐसे आधी रात को सेहन में बैठा अगरबत्तियाँ जला रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उससे बुलाया तो उसने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया।
मैं वापस कमरे में आ गई, मगर उसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अजीब बात थी, भला आधी रात को ऐसे काम कौन करता है? न जाने मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। उनके घर से आधी रात को क्यों खुशबू आ रही है? मुझे वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। सुबह सुबह ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा देवर वो राख सेहन में दबा रहा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने कहा, ऐसे क्या हंस रहे हो? वो मुझे कहने लगा, ये आवारा नकम्मा लड़का अब कुछ तो करेगा। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब है, क्या करने लगे हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ उल्टा कर रहे हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, आपको भी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और एक बात आप भी याद रखना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ सिखाने या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं इस किस्म की बातें सुन रही थी। बहुत ही अजीब किस्म का था। मुझे हैरानगी हो रही थी उसकी बातें सुनकर। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सामने मेरा शौहर बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा, किसी के साथ कॉल पर लगा हुआ था। न जाने दूसरी तरफ से कौन क्या बोल रहा था। वो बस गुमसुम सा सुन रहा था, जैसे उसके वजूद में जान ही ना हो। मैंने उसे बुलाया तो वो एकदम से होश की दुनिया में आया और उसने कॉल कट कर दी और मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ था, ऐसे परेशान क्यों बैठे हुए थे? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो अब मुस्कुरा रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे ये सब कुछ दिखाने के लिए कर रहा है। असल में वो बहुत परेशान था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों भाई बहुत अजीब हो, मुझे तो बहुत अजीब लगते हो। वो मुझे कहने लगा, क्यों, हमारे सर पर सींग है? इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया और वो हंसने लग गया। अब वो मेरे साथ ठीक था, बात भी ठीक करता था, कुछ कहता भी नहीं था, मगर मैंने बहुत बार उसको फोर्स किया था। वो परेशान परेशान रहता था। कभी कभी वो मुझसे दूर जाने की भी कोशिश करता था, जिससे मुझे साफ पता चल जाता था कोई तो मसला था उसके साथ। मैं किचन में काम कर रही थी। इतने में मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने देखा तो अम्मा की कॉल आ रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर कॉल पिक की। अम्मा से हालचाल पूछने लगी, साथ साथ काम भी कर रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि वो मेरी बहन का रिश्ता ढूंढ रही हैं। ना कोई रिश्ता मिलता है, ना वो शादी के लिए मान रही है। मैंने अम्मा को कहा, पहले इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने थे, फिर इसकी शादी के बारे में सोचना। अम्मा मुझे कहने लगी, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। मैंने हैरत से कहा, बड़ी अजीब बात है, वो क्यों नहीं शादी कर रही? अम्मा ने मुझे कोई ख़ास वजह न बताई। थोड़ी देर में अम्मा से बातें करती रही, फिर मैंने कॉल कट कर दी। अचानक एक लड़की घर में दाखिल हुई। मैंने कसम से आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? वो मेरे देवर का नाम लेकर कहने लगी, ये उसका घर है क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे कहने लगी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद सुन के मैंने हैरानगी से देखा और कहा, ओ बीबी, पागल हो गई हो? ऐसा भला कैसे शादी होती है? किसी के भी घर आकर कह दिया कि मुझे उससे शादी करनी है? अगर करनी ही है तो लड़के से बात करो, उसकी अम्मा से बात करो। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, मैंने आपके देवर से बात की थी, मगर वो कहता है उसे किसी से भी शादी नहीं करनी। ये भला क्या बात हुई? मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे उससे शादी करनी है। इसके बाद सुन के मैंने कहा, रहने दो, उसके साथ शादी करने से अच्छा है तुम कुंवारी ही रह जाओ। न जाने उसने तुम्हें क्या कह दिया है कि तुम उसके पीछे भागी हुई आई हो। वो मुझे कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा तो नहीं है कि किसी लड़की को भी मुंह लगा ले, बाहर तो किसी को मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसकी बातें हैरत से सुन रही थी। इतने में मेरा देवर आया और कहने लगा, पागल औरत, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, फिर क्यों मेरे पीछे आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरे देवर ने गुस्से में कहा और वो चली गई। एक बात मैंने नोट की थी, आज मोहल्ले की भी 2 लड़कियां आई थीं और वो मेरे देवर के बारे में पूछ रही थीं। और इसी वक्त ये मैं सोच रही थी कि शायद कोई काम हो जिसकी वजह से वो पूछ रही थीं। लेकिन अब इस लड़की को देखकर मुझे इनका भी मामला कुछ और ही लग रहा था। इसके जाने के बाद मैंने अपने देवर की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये कौन लड़की है? वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगा, आप लोग ही मुझे कहते थे ना कि तुम आवारा किस्म के हो, तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? अब देखना कैसे मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगती है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा भी क्या था उसमें जब लड़कियों की लाइन लग जानी थी? मैंने उससे काफ़ी बार पूछा, लेकिन फिर उसने ना बताया। रात का वक्त था, मेरा शौहर बाहर ही था काम पर। मैं कमरे में आई। मैंने कुछ देखने के लिए अलमारी का दरवाज़ा खोला तो सामने वो वाला दराज खुला हुआ था। शायद मेरा शौहर बंद करना भूल गया। मैंने जल्दी से इस दराज को खोला और इसमें से वो फाइल निकाली। वो फाइल्स निकालकर मैं उसे देखने लगी। अचानक वो देखते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मैं खुश घूंट भरने लगी। मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लग गया। मैं पीछे बेड पर जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब मुझे समझ आ रही थी वो मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करता था, मुझसे दूर क्यों रहता था, मुझे ऐसा क्यों कहता था कि मुझे डर लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। मेरा दिल क्या मैं चीख चीख कर रोने लग जाऊं? इससे बताऊं कि मैं तो इससे मोहब्बत कर बैठी हूं। मैं वही खोल कर बैठी हुई थी। इतने में कमरे में मेरा शौहर दाखिल हुआ।
मुझे देखकर उसके कदम वहीं पर जम गए। मैं रोते हुए उसे देखने लग गई। वो धीरे से मेरी तरफ आया और मेरे हाथ से वो फाइल पकड़ने लगा, मगर मैंने साइड पर कर ली और नफ़ी में सर हिलाने लग गई। वो मुझे कहने लगा, इधर मुझे दो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कैंसर है? वो मेरी तरफ देख कर कहने लगा, क्यों परेशान हो रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, कैसे ठीक हो जाएगा? कितने आराम से आप कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपको कैंसर है, मैंने रोते हुए कहा। और वो कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, इलाज चल रहा है, इतनी ज़्यादा खतरे की बात नहीं, अभी शुरुआत थी, मैंने इलाज शुरू करवा लिया, अब कोई ख़ास खतरे की बात नहीं है। इसकी बात सुन के मैंने कहा, अगर खतरे की बात नहीं थी तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते थे कि मुझे? वो मुझे बताने लगा, मैं बस डर गया था, इस वजह से ऐसा कहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बस मैं ठीक हूँ। लेकिन इन सब के बारे में ना सोचो, मैं शादी से पहले भी इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा किया मैंने नहीं सुनी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। एक तरफ से मैं परेशान थी अपने शौहर की वजह से, तो दूसरी तरफ से अब मुझे सुकून था कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख खुली, मैंने इर्द गिर्द देखा, घर में अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने देखा मेरा शौहर तो सो रहा था। मैं कमरे से बाहर आई। मैंने बाहर आकर देखा तो सामने मेरा देवर अगरबत्तियाँ जला रहा था। मैंने जाकर उससे पूछा तो वो हंसते हुए पहले कुछ सोचने लगा, फिर बोला कि उसकी वजह से तो घर में मेरे रिश्तों की लाइन लग जाएगी, जैसे पहले लड़कियां आई थीं। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या उल्टे सीधे अमल कर रहे हो, बंद करो ये सब। वो मुझे कहने लगा, मैंने आज तक किसी को किसी भी काम से नहीं रोका, तो मैं भी किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो मुझे मेरे काम से रोके। आई समझ, अब आप जा सकती हैं। उसने तो अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी थी। इसके बाद तो सच में उसके लिए मोहल्ले की लड़कियां भी आती थीं, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते थे। मगर अब मेरा देवर किसी से शादी करने को तैयार नहीं था। मेरी सास तो फिर से उसकी वजह से परेशान थी कि अब इसका क्या बनेगा, ये तो किसी लड़की के साथ शादी नहीं कर रहा। वो मुझे कहता कि मैं जानता हूँ इन लड़कियों को, क्यों ये मेरे पीछे आती हैं, ये जो कुछ चाहती हैं ऐसा नामुमकिन है। उसकी बात सुन के मैंने कहा, बस करो, ये तुम्हारे उल्टे कामों और अमल की वजह से आती हैं। अगर ये सब बंद कर दो तो कोई लड़की तुम्हें मुँह न लगाए। लेकिन वो अपना काम करने लगा। सुबह के वक्त वो राख सहन में दबा देता था। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बहन को ये राख दूं, ताकि उसका भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और मेरी अम्मा की भी परेशानी ख़त्म हो जाए। अब मुझे अपने शौहर की तरफ से तो सुकून था। पहले तो इसकी वजह से मैं ये भी भूल गई थी कि अम्मा ने मुझे कहा था कि छोटी बहन का रिश्ता देखती रहना, कोई अच्छा सा। अगले दिन मैं अपने घर गई तो अपनी बहन को राख दी। वो इतने आराम से वो राख रखने के लिए मान गई। मुझे हैरत भी हुई थी, क्योंकि वो जिस किस्म की थी उसने तो राख को देखना भी नहीं था, मगर अब वो बदली हुई लग रही थी। आजकल वो बहुत खुश भी होती थी। इस दिन तो मैं उसको राख देकर घर आ गई, लेकिन घर आकर मुझे अजीब सा लग रहा था। रात हो गई थी, लेकिन मैं परेशान थी, सब सो रहे थे। आज तो देवर भी घर पर नहीं था। मैं बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। हवा चल रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ दरवाजे पर मेरा देवर, मेरी बहन अपने तमाम तर साजो सामान के साथ खड़ी हुई थी। मेरा देवर मुझे देखते हुए कहने लगा, भाभी इनसे मिले, ये है मेरी वाइफ। मैं अपनी बहन को देख रही थी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। वो घर में दाखिल होते हुए बोला, तो ये है वो लड़की आपकी बहन जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता था। तो आप मुझे कह देती थी कि तुम कहाँ हो और मेरी बहन कहाँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ शादी करके, क्योंकि मेरी तो ये मोहब्बत है। अब जानना चाहती हैं मेरे पीछे इतनी लड़कियां क्यों पड़ी हुई थीं? मैंने उससे कहा कि क्यों पड़ी हुई थीं, तो वो हंसते हुए कहने लगा, दिन रात मोहब्बत की है, कारोबार बनाया है, अच्छा खासा कमाता हूँ, सबको नहीं बताया, बस लड़कियों को बताता हूँ, फिर आ जाती हैं मुझसे शादी करने। वो हंसता हुआ मुझे बताने लगा। इसके बाद सब घर वाले इकट्ठे हो गए। मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैंने घर अम्मा को भी खबर दे दी। अब वो भी खामोश हो गई, क्योंकि अब्बा का भतीजा जो था, जिसके साथ वो शादी कर चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन आया कि मेरा ये वाला कज़न भी कारोबार करने लग गया है। लेकिन बाद में जल्द ही उसके कारोबार का पता चल गया। वो बहुत अच्छा कारोबार करता था। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरा शौहर भी पहले से बहुत बेहतर हो गया था। लेकिन मुझे कभी कभी हैरत भी होती थी, कितना वो बहादुर था। उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं था, सारा कुछ खुद ही किया था, खुद ही इस बीमारी से लड़ता रहा था। दूसरी तरफ मेरा देवर था, सबकी बातें सुन सुनकर भी फिर भी इतना कामयाब इंसान बन गया था। ये सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से हुआ था। नाजरीन,
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।